بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے اور طاقتور بھی کنفیوزڈ ہیں کہ کیا جائے۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں، لیکن جیل سے بیٹھ کر بھی انہوں نے پورے کے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات کر دی کہ ہم تو کوٹری کے پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہلچل یہ بتا رہی ہے کہ عمران واپس آ رہا ہے۔ تو اس سب کے اندر کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ دو جو طاقتور شخصیات ہیں، یہ جناب اب سے کچھ دن پہلے مستعفی بھی ہو چکی ہیں اپنے اہم ترین عہدوں سے۔ میں اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات تو رکھوں گا کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے۔ آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں اس وقت بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ اب 9 مئی کو معاف نہیں کریں گے۔ جو کچھ گناہ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب عمران خان سے متعلق جو ہے وہ آخری سفارش جا چکی ہے اور یہ آخری کارڈ کھیلا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ ملاقات اس وقت بڑی ڈیسائسو ہو چکی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کن کن کے درمیان ہوئی ہیں اور GHQ کون پہنچا، کیسے پہنچا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ اور پھر دوسری جانب 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ ثانیہ اور یہ واقعہ جو ہے وہ ایک خوفناک ترین شکل اختیار کر چکا ہے، اور ایک ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور مریم نواز نے جناب منہ پر کالس من لی ہے، ان کا جو اکھاڑا کا جو جلسہ ہے وہ بڑھ گیا۔ وہ صورتحال کیا بنی ہے، وہاں سے کیا خطاب ہوا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت جس طرح سے جناب ان کے حساب پر طاری ہو گئے عمران خان صاحب، اس سے واضح ہے کہ اب یہ عمران کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، میں کچھ دنوں سے خبر تو یہ دے رہا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو آج کل فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو خبر دی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ میرے سے شاید اس بات پر اتفاق نہ کریں اور وہ غصہ کریں، گالیاں دیں، ٹرول کریں، ٹویٹر پر جائیں۔ میں نے ٹویٹر پر بھی یہ بات کر دی کہ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف پہ ایک رانگ نمبر انجیکٹ کیا گیا ہے، اور یہ پارٹی میں ایسا زہر اگل دے گا اور یہ پوری کی پوری پارٹی کو تتر بتر کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت صاحب کو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نہیں ہے، ان کی پارٹی پالیسی وہ کی لائن نہیں لیتے، اور پارٹی ان کو اب آن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اطلاعات کی جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں رؤف صاحب، تو انہوں نے بھی اس بات پر بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں رہے۔ لیکن جناب لوگ اب اس بات کو نہیں مان رہے، تو عارف علوی صاحب کے والے سے اب انہوں نے خبر دے دی ہے۔ اب عارف علوی صاحب اس وقت نظام کا حصہ ہیں، وہ صدر پاکستان ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے صدر ہیں۔ وہ اس وقت ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ نہیں، بلکہ وہ صدر پاکستان، ان کے پاس ریاست پاکستان کا عہدہ ہے، اور وہ اگر جانبداری کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تو آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ عارف علوی رانگ نمبر نکلے، حالانکہ خود شیر افضل مروت صاحب رانگ نمبر ہے۔ میں اعلان یہ بات کر رہا ہوں، میں کھل کر آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا، جس کانفیڈنس سے آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت میڈیا پر نہیں آ رہی، میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خبریں دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں دینا چاہتا۔ وقت آنے پر میں خبریں بھی دوں گا انشاءاللہ آپ سب کو کہ شیر افضل مروت صاحب کس طرح سے پارٹی کے اندر کیا کچھ کرتے رہے، کیا وہ کام کرتے رہے۔ تو انہوں نے عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کر دی ہے۔ عارف علوی صاحب عمران خان صاحب سے ڈیڈیکیٹ ہیں، وہ جس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر آپ عارف علوی کو آپ کو شاباش دینی چاہیے کہ وہ نظام کا حصہ رہ کر بھی انہوں نے جناب نظام کو ننگا کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پارٹی سے ان کا پتہ صاف ہو چکا ہے، یہ ان کا پتہ صاف ہو گیا، بیسیکلی پتہ ان کا صاف ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے معروف صحافی طارق متین کے ساتھ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب عارف علوی کے بیٹے نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو میں نے مخالفت کی تھی، اور عارف علوی نے اس وقت ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جب وہ بہانے سے سعودی عرب گئے، اور جس سے PDM حکومت اور چیئرمین سینیٹ کو متنازع قوانین پاس کرنے کا موقع فراہم کیا۔ نواز شریف کو نااہلی ختم کرنے والا قانون بھی تب پاس کیا گیا، اور اس دوران متنازع قوانین پاس کیے، اور آرمی ایکٹ کے تحت جو سائفر ٹرائل ہو رہے ہیں وہ بھی عارف علوی کی وجہ سے قانون بنا۔ اور جناب عارف علوی صاحب نے تو آرمی ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ دستخط نہیں کیے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جناب میرے جو یہ ملٹری کے لوگ ہیں، جو میرے اس وقت نیچے طبقہ ہے، جو میرا عملہ ہے، انہوں نے کس طرح سے جناب یہ دستخط کر دیے ہیں، یہ کام تین سوال ہے۔ اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائی تھی کہ جناب میں نے دستخط نہیں کیے، جعلی دستخطوں کے ذریعے جو ہے وہ قانون بن گیا ہے، اور میڈیا پر خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن
आपको पता है कि ताकतवर यहाँ पर कुछ भी करवा लेते हैं, कवानीन भी पास करवा लेते हैं, तो यहाँ पर किसी की भी औकात बाकी नहीं है। तो सदर आरिफ अलवी को आइन के तहत इंतखाबात देने की तारीख का इख्तियार था, लेकिन उन्होंने जो खत इलेक्शन कमीशन को लिख दिया, पार्टी पर इतना मुश्किल वक्त था, तो सदर को किसको खुश कर रहे थे। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आरिफ अलवी रॉन्ग नंबर निकले हैं, और इमरान खान से आरिफ अलवी के इशू पर 2-3 बार बात की। वो समझते हैं कि आरिफ अलवी ने हमारे साथ ज्यादती की है, लेकिन इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अरसे से पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और ये डट कर खड़े रहे हैं। और शेर अफजल मरवत को तो जुमा 2 दिन हुए हैं पार्टी के अंदर आए हुए, वो पुराने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वो आपने समझना है कि किस तरह से इमरान खान साहब का दिमाग ये शख्स खराब करने की कोशिश कर रहा है, और इटसेल्फ हिमसेल्फ ये शख्स जो है वो खुद एक रॉन्ग नंबर है पार्टी के लिए। जनाब, आज मरियम नवाज साहिबा का जलसा ओकाड़ा में, और ओकाड़ा में जलसे से पहले तमाम आज पूरे ओकाड़ा के अंदर तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। छुट्टी थी तमाम स्कूलों के अंदर और तमाम सरकारी दफातर में, क्योंकि मरियम नवाज आ रही है, जलसा करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं है, और वहां पर आप जो है स्कूलों को बंद करवा रहे हैं सिर्फ मरियम नवाज के लिए। वहां पर हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर लोगों को जनाब फिर भी भेजा जा रहा है कि आप निकले वहां पर मरियम नवाज के जलसे में जाए, लेकिन ये जलसा फिर बढ़ गया। इस जलसे की औकात आपने देख ली है कि लोग कहां पर खड़े हुए, लोगों ने फैसला कर लिया है, ये लोग बाहर निकलेंगे आवाम के अंदर, लोग इनको जूतियां मारेंगे। इस वक्त ये सूरत हाल जा चुकी है, लोगों की पल्स ये लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और इनको पता है इसी वजह से जलसे नहीं किए जा रहे। वरना नवाज शरीफ साहब जो है वो जिस तरह से आए हैं, वो जनाब पाकिस्तान, उसके बाद अभी तक उन्होंने एक इंटरव्यू किसी सहाफी को नहीं दिया, एक जलसा उन्होंने किया लाहौर के बाद, तो उनको अंदाजा हो चुका कि मेरी औकात कितनी सी रह चुकी है, और जो पंजाब वो छोड़ कर गए थे वो पंजाब अब वो नहीं रहा। तो मरियम नवाज ने जनाब जलसे से खिताब किया, और इनका आपने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो तब्दील होकर वोट को इज्जत दो के बयानिए पर जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि जनाब चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तुम कहते हो तुम्हारा निशान बल्ला था, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जो आपने हाथ में पकड़ा होता था, और वो डंडा तुमने पाकिस्तान की आवाम और रोटी पर चलाया। तो जनाब आप अंदाजा लगा लें कि ये बल्ले के निशान से इतने खौफजदा थे कि ये बात करें कि बल्ले का निशान आपको नहीं मिलना चाहिए था। और भाई मर्द के बच्चे बोलो मुकाबला कर लो, आप इंतखाबात करने आए, आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, और आपने तो फील्ड ही पाकिस्तान देकर इंसाफ से छीन लिए। और जरा मर्द के बच्चे बने जाए मैदान के अंदर, मुकाबला करें, खान साहब का मुकाबला कर लें। अगर आप जीत के तो ठीक है, इमरान जीत के तो आप ठीक है, ये जमहूरियत है, आपने जमहूरियत का हुस्न देखना, वहां पर इख्तलाफ होता है, लेकिन आपने तो जनाब पाकिस्तान में फिस्तायत का जो बाजार गर्म कर दिया है। तो पाकिस्तान की अवाम ये तारीख जो है कभी नहीं भूलेगी, ये तारीख लिखी जा रही है, और ये स्याह तरीन तारीख है पाकिस्तान की। तो मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद को देखते हुए मुझे खुशी का इजहार हुआ है, और नवाज शरीफ ने उन्हें यह पैगाम देने की हिदायत की है कि वो अपने ओकाड़ा से प्यार करते हैं, और ओकाड़ा वालों ने भी उनके साथ हमेशा वफा निभाई है। और अगर इतना प्यार करता है नवाज शरीफ साहब ओकाड़ा से, तो आता खुद ओकाड़ा में बैठ कर तकरीर करता। उसको पता है कि लोगों ने अंडे मारने, टमाटर मारने, उसकी औकात बाकी नहीं रही, उसकी टिंड पर लोगों ने टमाटर मारने, मतलब यहाँ तक सूरत हाल जो है वो जा चुकी है। तो हमें शायद ये बात करने की जो है वो जरूरत नहीं है, लेकिन गुस्सा इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का यहाँ तक जा चुका है, और आपने ऑलरेडी देख लिया है। और ओकाड़ा वालों को खराब सियासी मौसम में भी नून लीग का साथ ना छोड़ने पर सलाम पेश करती हूँ। शदीद सर्दी में जलसा बता रहा है कि 8 फरवरी को शेर ओकाड़ा में धाड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है, और इंतकाम नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुदरत ले रही है। जो जितना बड़ा जालिम होता है उतना ही बड़ा बुज़दिल होता है। और उन्होंने कहा कि शोर मचा रहा है कि हमारा इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया है, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है। और उनका कहना था कि कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ पर होने वाले जुल्म का खुद नोटिस ले लिया है। ये वही अल्लाह पर उन्होंने काम छोड़ने की बात की। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब आइंदा आने वाले दिन जो है वो इंतहाई मुश्किल होंगे। आमिर इलियास राना जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीब हैं, और ये गिद्ध है पाकिस्तान की सहाफत के, बदनुमा चेहरा सहाफत का, और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, और ये नून लीग के ज्यादा करीबी जो है वो सहाफी हैं। आमिर इलियास राना साहब कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो 9 मई के हवाले से कुछ अहम बड़ी सख्ती होने जा रही है। घेरा तंग होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और कुछ लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। यानी कि आइंदा आने वाले दिन जो है वो बड़े अहम है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो भी ये बात कर चुके हैं। मंसूर अली खान साहब के साथ जो उनका मुलाकात हुई, जो इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बात की कि वो 9 मई कभी नहीं बोलेंगे, उस पर तहकीकात भी होंगी, उनको कटारे मिलाकर खड़ा भी किया जाएगा। और इमरान खान साहब का फ्यूचर में अभी तक कोई वो पाकिस्तान की सियासत में किरदार नहीं देख रहे, और उनके लिए अब बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत कर रही है कि जनाब बात हो रही है कि 9
9 मई को नहीं भुला जाएगा। इदारा आपसे बात मुखातिब है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ात से लेकर आपके साथ मुखातिब नहीं हूँ, आपके सामने एक इदारा बैठा हुआ। इदारे की सोच जो है उन्होंने बता दिया कि अंदर खाते जो है उस इमरान खान को लेकर बड़ा गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब 2 ताकतवर शख्सियात के जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात की खबर इस वक्त चल रही है कि उनकी मुलाकात हुई है। और ये खबर दी गई है हसनात मलिक साहब की जानिब से, जो कि बीट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कोर्ट्स को कवर करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया परवेज़ मुशर्रफ साहब को लेकर, और ये फैसला जो है वो ताकतवर हल्कों में इस वक्त अच्छा समझा नहीं जा रहा, लेकिन ये बड़े करीब हैं, उनके आंखों का तारा भी है, क्योंकि जो बात करते हैं काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अच्छे बच्चों की तरह मान भी लेते हैं और बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये उल्टा लेटे हुए हैं, इनको जितना मर्जी मारे इनको जो है वो दर्द नहीं होता। तो इन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की झुर्रियाँ धज्जियाँ उड़ा के रखती हैं। तो खैर हसरात मलिक साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं कि 2 मुस्ताफ़ी जजेस जो यानी कि जो हाल ही में 2 जजेस जो है मुस्ताफी हुए, जिसमें मुतार अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस भी थे। उसके बारे में खबर दी कि जब ये सिटिंग जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो ये उस वक्त मुसलसल उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, यानी कि जनरल बाजवा साहब के दौर में ये उनके साथ राब्ते में थे, उनसे जनाब जो है वो गाइडलाइंस देते थे। और जब अप्रैल में इमरान खान साहब के अदम एतमाद पर वोटिंग का मामला चल रहा था, तो ये 2 जजेस जो हैं वो DHQ गए, इन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और इन्होंने उस मुलाकात में दरख्वास्त की कि अगर आपने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दिया तो ये ढोल आपसे नहीं बजाया जाएगा और सूरत हाल आपके हाथ से निकल जाएगी। तो फिर वही हुआ जो 2 जजेस ने इनको बताया था कि अब सूरत हाल किसी के काबू में नहीं रही और इमरान खान साहब जो है वो इनके सर पर एक बहुत बड़ी तलवार बन गया है। और इमरान खान साहब को अब उतारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास पब्लिक की पार ज़्यादा है, उसके पास मकबूलियत है, चाहे कबूलियत हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब उस तरह से मुल्क से बाहर भागने को तैयार नहीं है, वो डील करने को तैयार नहीं है। वो अवामी जो है वो सपोर्ट के साथ इन पर अपना दबाव डालने में जो है वो अच्छी तरह से कामयाब हो चुका है और उसने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया है और उसने ये साबित कर दिया है कि वो इस रियासत का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर तरीन जो है वो आदमी है। लेकिन इन दोनों ने जो है वो इन दोनों जजेस ने इमरान खान साहब की उस वक्त सिफारिश की थी, लेकिन सिफारिश जो है वो नहीं मानी गई थी, क्योंकि उस बाजवा साहब जो हैं वही मजबूर हो चुके थे, क्योंकि अमरीकी साइफर आ गया था, धमकियां थी और पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को उस वक्त देखना था। तो ये खबर दी गई है हसनात मलिक साहब की जानिब से। अब ये क्योंकि अब जनरल बाजवा साहब जो है उन्होंने बहुत सारी सूरत हाल को ख़राब कर दिया था, तो अब वाले भी जो सिटिंग एस्टैब्लिशमेंट है वो भी जनरल बाजवा साहब को कहती है जनाब आप अपना मुंह बंद कर लें, आपने आगे बहुत सारी चीज़ों को हमें नुकसान पहुँचा दिया। तो खैर अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपना ख्याल अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।